Good afternoon, class. So, today we are going to revise a new chapter, that is endocrine system. So, in endocrine means the hormonal system that are present in animal's body or human body. So, in this chapter, we have studied about the hormones. That what are hormones? Hormones जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होके एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. There are some characters that we have studied about the hormones, that they are required in a very minute quantity. They are produced in another place, and their action site of action is different from the place or the site of its production. Next we have studied four type of glands: pituitary, adrenal, hypothalamus and pancreas. ये फोर ग्लैंड्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं और यही हमने स्टडी किए थे. इनके वेरियस इफेक्ट स्टडी किए थे. इनकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होगा, बॉडी में अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं. कम प्रोडक्शन और हाइपरस्क्रेशन दोनों कंडीशंस के अंदर ये क्या होते हैं, अबनॉर्मलिटीज़ बॉडीज़ के अंदर लेके आते हैं. तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर कि हमने ये चीज़ें चैप्टर के अंदर पढ़ी थी. अब हम इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स. So first question is adrenal gland. Why is adrenal gland adrenal hormone is called as emergency hormone. Now adrenal is a hormone which is connected with the adrenal gland. ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के साथ रिलेटेड है. Now it is called as emergency hormone because it produced during the emergency condition to fight our body with the emergency conditions. Now what is emergency condition? It is fight or flight condition. Flight or fight condition. जब हम भागेंगे कहीं से या लड़ेंगे हम किसी के सामने, that is called emergency condition. For though these emergency condition, to prepare our body, some hormones are released, and one of the hormone is adrenal hormone. It is called as emergency hormone because it produced during the emergency situations or prepare our body to fight in the emergency condition. That is the reason why it is called as a emergency hormone. This is the first question. Second question is, एड्रेनल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, बट इंसुलिन डिक्रीज इट. एक्सप्लेन बोथ हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल रादर देन अपोजिंग ईच अदर. सो this adrenaline is the same, this hormone, it actually increase the blood glucose level. Okay, how this happens? That adrenal work during emergency condition. So to withstand that emergency condition we required energy. The energy requirement increases. So in that case energy comes from glucose. So in that case the glucose level will increases. This is how this hormone work, that to withstand the emergency conditions we require more energy, and that energy comes from glucose. Hence the level of glucose increases in our body. But insulin what does? That insulin, this is the molecule of insulin. What it does, that it start, this is the cell wall and this is the molecule of glucose. This insulin make this glucose molecule to enter inside the cell. So that's how it decreases the level of glucose in the blood. सो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देगा ताकि एनर्जी रिलीज़ होनी शुरू हो जाए. तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. सो एड्रेनल क्या करेगा कि ब्लड के अंदर और ग्लूकोज अवेलेबल करवाएगा और उसी इंसुलिन
उसी हार्मोन को इंसुलिन क्या करेगा, सेल्स के अंदर लेके जाना शुरू कर देगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं ना, रादर देन कि ये अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि एड्रीनल इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी जब एमरजेंसी कंडीशन होगी, लेकिन एमरजेंसी के बाद हम नॉर्मल कंडीशन में भी तो आएंगे, तो तब हमें ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ग्लूकोज को कम कौन करेगा, इंसुलिन। तो बोथ कंडीशन में बोथ एड्रीनल एंड इंसुलिन हेल्प अस इन द सर्वाइवल। अगर एमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा नहीं होगा तो हम लड़ नहीं पाएंगे। अगर एमरजेंसी कंडीशन के बाद ज़्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए हमें, तो अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो हमारा इंसुलिन ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ जाएगा, स्पाइक कर जाएगा, जो भी हमें नहीं चाहिए। बोथ कंडीशंस क्या हैं, डेंजरस हैं। तो दोनों कंडीशंस क्या कर रही हैं, हमारी बॉडी को सर्वाइवल में मतलब सर्वाइवल रेट क्या कर रही हैं, बॉडी का इंक्रीज़ कर रही हैं, ताकि हम अच्छे से एमरजेंसी में लड़ सकें और एमरजेंसी के बाद जो नॉर्मल कंडीशन आएगी उसमें हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल हो पाए। तो दैट्स हाउ ये दोनों हार्मोन्स सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के ओपोजिट काम कर रहे हैं, नो, ओपोजिट तो है ही है, वो तो है कि एक इंक्रीज़ कर रहा है लेवल, एक डिक्रीज़ कर रहा है, बट दोनों क्या कर रहे हैं, हमें सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें समझना है। थर्ड क्वेश्चन इज, Priya tried to match the hormone with their effect on their human body. She tabulated the pairs as follows. तो प्रिया ने क्या किया है कि मैच किया है हॉर्मोन्स को विद देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। सो हियर द हॉर्मोन्स पी एंड क्यू एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। तो प्रिया ने ये चीज़ें की है कि उसने टैबलेटेड फॉर्म में ये हमें गिवन कर दिया। पी क्या है, स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड क्यू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द नेफ्रॉन। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं हार्मोन और इनके इफेक्ट हमें बता दिए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, वी हैव टू नेम द हार्मोन पी एंड क्यू। तो ये पी और क्यू क्या है, स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। तो ये दो हार्मोन्स हैं, ये हमने तीन पढ़े हैं। ये क्वेश्चन है विद द पेनक्रियास, पेनक्रियास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पेनक्रियास तीन तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, उनमें तीन तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करता है ग्लूकागन। तो ग्लूकागन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। एंड थर्ड हार्मोन रिलीज्ड बाय द pancreas is that vasopressin. तो vasopressin hormone is responsible for absorption of water by the nephron. तो P is glucagon and Q is vasopressin. Next question is, this is a statement based question, थोड़ा tricky question है। A child with a normal intelligence but extremely short stature is treated early and grows to normal height. तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक चाइल्ड था जिसकी नॉर्मल इंटेलिजेंस थी बट उसका जो स्टेचर था बहुत छोटी हाइट थी उसकी। तो अर्ली एज में ही उसको क्या कर दिया गया, ट्रीट किया गया कुछ मेडिसिन, कुछ हार्मोन्स के साथ, ठीक है, ताकि उसकी जो हाइट है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो उसकी हाइट नॉर्मल ग्रो की भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने एक देखना है वर्ड अर्ली, इसका हाइट से बहुत रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या है। आई होप स्टेटमेंट सबको समझ आ गई, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक चाइल्ड है, चाइल्ड विद अ नॉर्मल इंटेलिजेंस उसकी नॉर्मल है बट उसका जो स्टेचर था वो बहुत शॉर्ट था, छोटी हाइट थी उसकी। एंड ट्रीटेड अर्ली एंड ग्रो टू द नॉर्मल हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द हार्मोनल डिसऑर्डर। तो हार्मोनल डिसऑर्डर क्या होगा, मतलब कि जो उसकी छोटी हाइट रह गई थी वो किसकी वजह से थी, पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से। वहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिसऑर्डर हुआ, एंड द डिसऑर्डर इज कॉल्ड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। हम जो वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे
डवार्फिज्म, डवार्फ का मतलब होता है जो शॉर्ट रहे, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम डवार्फिज्म वर्ड यूज़ करेंगे, एंड बिकॉज दिस कैन ऑल्सो बी ड्यू टू सम अदर हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में सिर्फ पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स नहीं है जो इसे रेगुलेट करते हैं, और भी हॉर्मोन्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज ड्यू टू पिट्यूटरी हार्मोन, तो दैट्स वाई वी पुट वर्ड पिट्यूटरी फर्स्ट, पिट्यूटरी डवार्फिज्म। कई जगह पे मिजिट्स वर्ड्स भी यूज़ किया जाता है, MIDGETS, जिट्स। सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन वाई इंटेलिजेंस रिमेन अनइफेक्टेड। उसकी हाइट छोटी थी लेकिन इंटेलिजेंस बिल्कुल नॉर्मल थी, क्यों? बिकॉज इस हार्मोन का बोन्स पे इफेक्ट होता है। मैंने पढ़ाया आपको कि जो पिट्यूटरी के ये हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये बोन्स पे एक्ट करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई इनका इफेक्ट नहीं होता है। तो इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिब्रम के थ्रू जो है वो इंटेलिजेंस कंट्रोल होती है, तो उस एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब वहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं गया है तो इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल रहेगी। सी पार्ट इज वाई इज अर्ली ट्रीटमेंट क्रूशियल इन दिस कंडीशन। नाउ व्हाट हैपन्स, ये आपकी बुक में ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी कि ये अर्ली ट्रीटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। आपकी बॉडी आपकी बुक के ऊपर एक चीज़ गिवन है कि अर्ली कंडीशन में जो हाइट होती है अर्ली कंडीशन में ही बढ़ती है, और वी कैन से बिफोर प्यूबर्टी ज़्यादा हाइट बढ़ती है। प्यूबर्टी इज अ पीरियड वेयर बॉडी इज मोर फोकसिंग टुवर्ड द मास बल्किंग और रिप्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान हो जाता है, वहाँ पे हाइट नहीं बढ़ती है। तो बोन्स जो होती हैं ना वो बिफोर प्यूबर्टी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। बोन्स उनकी ज़्यादा लेंथ जो है वो बिफोर प्यूबर्टी ज़्यादा जो है वो बनी रहेगी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है तो जो हाइट होती है वो रुक जाती है, और इसके बाद पॉसिबल भी नहीं होता कि आपकी हाइट जो है बढ़ जाए। तो इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो क्रूशियल है, क्योंकि अर्ली कंडीशन मतलब प्यूबर्टी से पहले, मतलब 13-14 ईयर की एज से पहले पहले ही आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो बोन्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होती, उनकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होती है। तो दैट्स वाई अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक चाइल्ड है जिसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल है बट एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टेचर है और ग्रो किया है नॉर्मली बाय गिविंग अर्ली ट्रीटमेंट। हार्मोनल डिसऑर्डर कौन सा है? पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। इंटेलिजेंस रिमेन अनअफेक्टेड बिकॉज देयर इज नो connection of this hormone with the central nervous system. Why early treatment is crucial? Because after puberty bones की जो increase in length होता है वो कम हो जाता है बिल्कुल। So here is the last year question paper where a 5 marks direct 5 marks question जो है यहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन है गिवन बिलो इज एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी शोइंग एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मैच द ग्लैंड्स मार्क A to E विद देयर करेक्ट फंक्शंस। हमें दो पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इस साइड पे हमें एंडोक्राइन ग्लैंड शो किए गए हैं और इस साइड पे हमें उनके फंक्शन शो किए गए हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है विद A B C D E F, यहाँ तक हमें ये गिवन किए गए। अब हमने बताना कि इन ग्लैंड्स के करेक्ट फंक्शंस क्या हैं। ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। तो ए हमें यहाँ पे शो किया गया है, दैट इज़ ब्रेन का पार्ट है, तो मीन्स ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस स्क्रीट्स ट्रॉपिक हार्मोन्स, जितने भी पिट्यूटरी हमें शो किया गया,
पिट्यूटरी जो यहाँ पे रिलीज़ करेगा ट्रॉपिक हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। बी हमारे नेक एरिया में शो किया गया है, तो नेक एरिया में कौन सा मीन्स ग्लैंड होता है? सो इस एरिया में जो ग्लैंड होता है दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड जो है वो एक रेगुलेट करेगा हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म। तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो इसी हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होता है। ये हमने पढ़े, ये फंक्शन से क्वेश्चन आया। सी है अपार्ट ऑन अ किडनी, सो हेयर इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड है हमारे पास यहाँ से। एड्रीनल ग्लैंड इट रेगुलेट्स बॉडी, इट प्रिपेयर द बॉडी टू फेस स्ट्रेस कंडीशन। एड्रेनलिन हार्मोन हमने टू क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, तो ये हमें जो स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं उसके लिए रेडी करता है। डी इज़ हमारे पास है, डी हमारे पास है पेनक्रियाज, यहाँ पे शो किए हैं। तो पेनक्रियाज में से जो अल्फ़ा बीटा गामा सेल्स होते हैं वो यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, और यहाँ पे जो हमें ऑप्शन गिवन दैट इज़ मेंटेन ब्लड ग्लूकोज और शुगर लेवल। तो इसमें इंसुलिन जो इन्वॉल्व होती है, इंसुलिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, अगर कम प्रोड्यूस हो रही है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हार्मोन है यहाँ पे, ये हार्मोन्स हमारे सिलेबस में है और गिवन है। नेक्स्ट हमें जो ओवरीज और जो टेस्टिस ये यहाँ पे शो किए गए हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस, ये हमारे इस चैप्टर से नहीं आए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से नहीं आए, ये हमारे आए हैं नेक्स्ट चैप्टर जो था दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। तो ओवरीज क्या क्रिएट करेंगे? ईस्ट्रोजन, एंड जो टेस्टिस हैं दैट्स क्रिएट टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये these two are not a part of endocrine system. These questions come from the chapter that is reproductive, human reproductive system. तो वहाँ से हमें ये क्वेश्चन आया है। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन जो आराम से आप लोग इसमें से 5 मार्क्स ले सकते हो। सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन आया है। लुक एट दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Observe the following picture and identify the defect that cause the defect. तो यहाँ पे एक मैन की पिक्चर शो की गई है जिसमें गले में एक बहुत बड़ा उभार सा यहाँ पे शो किया गया है, जिससे हमें पता चल गया कि ये गोइटर डिजीज़ है। हमने इसका आइडेंटिफाई द डिफेक्ट क्या है? एक्सोपिथेल्मिक गोइटर, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर जो डिजीज़ है किसकी वजह से हुआ है? ओवर सक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। जो ओवर सक्रीशन हो गई है थायरॉक्सिन की ओवर सक्रीशन का मतलब ये है कि अमाउंट बढ़ गया है उस हार्मोन का, लेकिन आयोडीन की कमी फिर भी बॉडी के अंदर है। तो आयोडीन की कमी इसमें है, लेकिन इसका हार्मोन का जो ओवर सक्रीशन हो गया है, अंडर सक्रीशन नहीं है, ये अंडर सक्रीशन नहीं है, ओवर सक्रीशन है। और गोइटर इसलिए हुआ है बिकॉज ओवर सक्रीशन तो हो गया लेकिन आयोडीन जो है वो अभी भी सफिशेंट अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं या मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी बताए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ फंक्शंस, कि आपने हार्मोन्स के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ने हैं, उसकी क्लैरिटी रखनी है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इज़ होमवर्क क्वेश्चंस। तो होमवर्क क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डॉक्स की फाइल में जो है वो आपके ग्रुप में ही सेंड कर दिए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस का रिकॉर्ड आपने अपनी क्लास को कॉपी के ऊपर रखना है, और जो भी होमवर्क के क्वेश्चंस आएंगे वो आपने अपनी होमवर्क कॉपी पे करने हैं। और एक और चीज़ कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चंस को आप ग्रुप में भी सेंड करें। ये नहीं है कि आप अपनी एक लाइन लिख के भेज देते हो ग्रुप के अंदर कि हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक करो। जब आपकी प्राइवेसी ओपन होगी तो तब आप वो उसी ग्रुप में सेंड करोगे, पर्सनली सेंड नहीं करना है। ग्रुप के अंदर जब प्राइवेसी ओपन होगी तो तभी आपने अपना वर्क भी सेंड करना है, और मैं आपको वो वर्क चेक करके आपको दोबारा से वो जो फ़ोटो होगी आपको रीसेंड कर दूँगा। तो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो डॉक फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे अभी ग्रुप के अंदर, और आपने वो करके होमवर्क कॉपी के ऊपर प्लस क्लास वर्क कॉपी के ऊपर ये सारा रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन करना है और मुझे वो सेंड करना है।
थैंक यू वेरी मच।